कह रहा था कि अटेंडेंस हो रही है, अच्छा भी कह रहा है। Hi, you already here? Hello boss, how are you? अरे साथ आ गए। Hi, Sandeep Maru. Hi, how are you, sir? Hi, how are you? Director, of course. कैसे हैं आप? Good morning, everybody. अगर आप सब बैठेंगे तो हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। यहाँ आप ही सभी के लिए आए हैं। शांति से सब बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। बीच वाली लोग बैठ जाए, बेशक बैठ जाए, लेकिन पीछे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बीच में बैठ जाइए सब, शाबाश। Yes, I know you're very happy. I am also very happy, my dear friend. मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। My dear friends, I'm very happy that today we have with us the complete team of feature film मैं और चार्ल्स। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से नया धमाका, फिर से एक बार नई जागृति, फिर से एक बार नया जोश। और ये हौसले बुलंद करके इस टीम ने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया जिसको शायद अब तक कोई सोच भी नहीं पाया। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में इस वक्त, भाई या तो तुम बोल लो या मैं बोल लेता हूं। I want absolutely silence. Guys. If you guys quieten down and relax and hear us out, I think you'll be far more entertained than hearing each other scream. So relax, guys. Sit down. And wherever you are, sit down, relax. We are here. And we will try and take some pictures later, okay? Yes. My dear friends, I'm very happy that today we have with us the director of the team, मैं और चार्ल्स। Our heartiest welcome to Mr. Prawal Raman. Big clap for Prawal ji. Good afternoon. Okay, sorry, I have to be like a director now. Can I be silent? I'd like to thank the management of this institution, Mr. Rahul Mitra, the CEO of Grace, for organizing this event, and me as a director and with my entire team, I'm extremely delighted to be here with you guys. So thank you to the organizers and to all of you guys for being here. When it comes to Charles and May or Charles, it's a very, today is a very emotional moment to me because I sit next to my uncle, the local guardian, Mr. Amod Khan, next to my actor Randeep Hooda, with whom I discussed the film 4 years ago, and of course my friend Amit Kapoor, who has produced this film. And the very idea I must share with you all came when Mr. Kant was the IG of Goa, and that was the first time when I had gone to visit him and I was staying with him, and he showed me the shack where Charles was caught. And I asked Mr. Kant if
he could tell me more about Charles. Today I decided that I would like to make a movie on him. Of course, the idea was that I would not like to glamorize crime and would like to showcase almost like in a very entertaining way the jailbreak which happened in your own Delhi, Tihar jailbreak in 1986, whose investigating officer was Mr. Amar Khan. So I did procure the case file and got a lot of inputs from him. And once I wrote the script, the very first draft, I met Mr. Randeep Hooda because according to me, in our country, or rather I would say worldwide, he's one of the finest actors. And I had decided that I'll make a film with him. And it took us 2 years to do the research together along with Mr. Amar Khan. And the script was ready. Thank Mr. Amit Kapoor and Vikram Kakkar and Mr. Raju Chadda for being such bold producers who took up a subject like this and went ahead with conviction and made this film possible. As far as Mayor Charles goes, I'm sure you guys love Bollywood films, but this is a film which is unlike a typical Bollywood film. It has all the entertainment, but thankfully you will not see any shadi, barati. You will not have much of the same run-of-the-mill things what you guys have been seeing. So I hope on 30th you guys catch the film. Thank you. Everyone, first and foremost, I would like to thank Mr. Mitra, Mr. Marwa and everybody who made this event possible today. And I really like the energy this place has. And coming to Mayor Charles, the day Prawal had narrated the film to me, I went home and I knew that everybody has a dark side to them too. And when you hear the incidents on a character like Charles, आप चार्ल्स बनना चाहेंगे, कहीं आपके अंदर एक हिडन डिजायर होगी कि चार्ल्स बनना चाहेंगे. तो मैं चार्ल्स बन तो नहीं सका, बट एटलीस्ट बना तो सका प्रवाल के साथ मिलके. तो but that was the day we decided to make this film, and the entire journey, right from its inception to its execution to now its release, it's been an amazing journey. And like I always quote, इस फिल्म में एक लाइन है जिसमें चार्ल्स एक कैरेक्टर से कहता है कि गेट रेडी टू गेट फेमस. आज के बाद लोग आपको चार्ल्स के नाम से जाने जाएंगे. तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आज के बाद हम सबको लोग चार्ल्स के नाम से जाने. And the film turns out to be a big success for everybody's hard work pays off. And please go and watch the film on the 30th of October. Rahul, Randeep, Adil, Prawal, Amit and Vikram. Well, I'm an outsider. You guys understand me. 34 years in police and 27 years in the social sector working for children in Prayas. My world is very different now. But the world in which I was there earlier, that's the world of policing, the world of violence, the world of crimes. There are many stories like Charles's now. And I'm happy, I'm indeed happy today that Charles is being converted into a film. And then Prawal, who is very close to me, very close to my heart, and Randeep, Adil, they're very close to me personally. That is the issue. And to convert this character whom I hated, whom I disliked from the core of my heart. I mean, I don't think I have come across a more devious character, a more dirty character, I would say. Don't mind. No, absolutely. Please don't mind, because see, in my career, 34 years of policing, I did cases like many of you would know perhaps me, isn't it? I was Joint Police Commissioner of Delhi, I was DG Police. Jaska Lal case, BMW case, Rajiv Gandhi assassination case, Arjun Das, Lalit Makan cases, all of my cases, Harshad Mehta's case. I did many cases and very difficult characters actually. But I haven't come across a more devious character, a more intriguing character, a character who defied all description. And I am not aware, I have not seen the film, I am not aware how Randeep would have portrayed this character. I have no idea.
and how, as Amod Kant, I believe, Adil would have portrayed me. I have no idea. Prabal gave me some glimpses of what the film is going to be. Now this character, very briefly, I don't want to disclose, I do not know what the film is, because I know him more as a character. That part I can share with you, because there is huge interest in Charles Sobhraj, globally. He operated from India to France, Iran, Afghanistan, and many other countries, Thailand. About 10 countries he operated, that is why. He remained in jail for 33 years of his age. He was 1944 born. And he went to jail in 1975-76. Remained in jail till 1986, when the notorious jailbreak took place, because of which I came in contact with him. He was in my custody for long 2 months in a government special aircraft, because he acquired that kind of notoriety that I had to get him on that flight and keep him in custody. I don't use third degree, let me clarify, because of, and perhaps for that reason I am running a children's organization today. But definitely I can interrogate people, I can question people, I can take things out of them. This man was very, very different from that point of view. There was a character called Richard, what's his name? The other one, David Hall. David Hall was another character from England. Thanks to him, that he really gave it out, everything about Charles, and we could work out the case. Now this man, to briefly put it, 1986 jailbreak took place, Tihar jailbreak. I don't think anywhere in the world, anywhere in the criminal history of the world, any jailbreak was so, I shouldn't say interesting, so manipulated, so much manipulated. Everybody, I mean, he put to sleep everyone. It's very surprising. He had this famous Tihar jail, all of you know Tihar jail, isn't it? Everybody knows Tihar jail, Delhi based. Now Tihar jail has a history of its own. But this man manipulated Tihar jail, all its officials, all its policemen, all its guards, everybody who had been there. Even Kiran Bedi came later, my senior in the service, and he manipulated everybody, and he walked out. He just walked out, and David Hall photographed everything. That was another very interesting thing. And then of course he was caught. He was caught after some time, and then he was brought to Delhi. Then he remained in jail for another 10 years, so 21 years here. Then he went out 1997, because actually there was no case against him. The case is he committed 20 murders. Globally he was known to be a big killer, as you know. And that's how in this film I am sure, despite all our efforts, there has to be sex, there has to be violence. I am sorry. Is it correct? Prabal would never make a film which has a lot of sex and violence, but this film has to be, because his life was all that. You understand that? So that is there. One doesn't know how has it been portrayed, I have no idea. So that is what he is. And then of course he went out. 1997, Government of India decided to throw him away. I was a party to it. Because we wanted him out of this country. This character we didn't want him to here. So he was sent out, he went to France. And from France he again kind of came to Nepal, and 2003 he was caught in Nepal, because out of these 20 odd murders, he had killed 2 persons in Nepal also, 2 American citizens. And he was given death sentence, life sentence, and presently he is undergoing life sentence. There is no possibility of Charles coming out, so far I can see it. Such a man should never really come out. 33 years is a short time for a person like him to be in jail. I only wish he doesn't come out. Although Randeep, did you meet him? Huh? Yeah, I met him. Randeep met him, so he will give the story about his meeting with Charles just about 2 days back, is it? Yes. 2 days On back. Sunday. So he will tell what exactly happened, what did he talk to him. But so far as I am concerned, my perception of Charles is very, very different. It is not romantic at all. It is not something which people should really imitate and copy. But then he is a kind of character who does it. So that is why probably in the global history of crimes and criminals, Charles stands out. And I am sure that this film is going to make a big part. I mean, nobody can escape it. People have to see it. Thank you. Aspiring to be on this side of the table. All the best, and I'm sure that Mr. Sandeep Marwa is inspiring enough for you and all the people who come and teach you. I happen to teach acting in National School of Drama since last 15 years, and I know how I was on the other side once, and I felt when I saw Anupamji one day walking in, I was in my shorts in the hostel, and I'm like, hey, I know this guy.
oh, this is Anupam Kher. So, so I can very well understand. And I'm here because of Amodji. Because if he wasn't there in the film, and in the story of, he doesn't come out and say, Adil yaar kya kar diya tumne? I hope he doesn't say that. And Prawal Raman, who is the director and very dear friend, he had been meticulously sort of directing me, and I hope that he has directed me and will save me from Amodji's rot, if at all it comes up with. And I'm extremely glad that Wave Cinema, the CEO, Mr. Rahul Mitra here, and Amit Kapoor, who is, as Mr. Sandeep Marwa said, with the research script. And I'm very happy to be part of it, and I hope that people come and watch it. And मुमकिन है ये डायलॉग एक पिक्चर में आया था 1970s में, और हमें पता चला कि ये चार्ल्स सोबराज की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था, जिसे बच्चन साहब ने बहुत खूबी बोला था। पिक्चर का नाम था डॉन। अब दिन दहाड़े 1986 में दिन दहाड़े एक इंसान 175 लोगों को बेहोश करके जमीन पे लेटा के उनकी बॉडीज के ऊपर से पैर रख के तिहाड़ जैसी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन की चाबी उठा के दरवाजा खोल के और बाहर टावर पे गार्ड को बाय बाय करते हुए निकल गया, ऐसा इंसान कैसा होगा? वो इसने क्यों किया और कैसे किया, ये है मैं और चार्ल्स की कहानी। मैं हाल ही में पूरी टीम के साथ प्रवाल में विक्रम खक्कड़ और राहुल मित्रा हम लोग चार्ल्स से मिलने गए नेपाल में, काठमांडू में, और उससे मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिर भी हमने बहुत तरह के जुगाड़ लगाए, परमिशन ली, फोन कॉल्स करवाए, कैसे कैसे करके हम वहां तक पहुंचे। उन्होंने बोला आप नहीं मिल सकते हो। तो हम वहां मिलने इसलिए गए थे क्योंकि मैंने सुना था कि वो जेल में लोगों को बोल रहा है कि 30 अक्टूबर को मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है, क्योंकि यार इतना प्रमोशन कर रहा है, इतना प्रभावित है हमारे प्रोमोज से, तो इसलिए हम उसको अपने पोस्टर्स प्रेजेंट करने गए थे। और मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स की बात की जा रही है, वर्ल्ड क्रिमिनल, जो अमोद जी ने बताया, बहुत एक तरह से घटिया किस्म का आदमी है। उसने अपने जेल में, हमारे जेल की सेल में हमारे पोस्टर लगा रखे, तो ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब बन गया है। उसने हमें पोस्टर्स ऑटोग्राफ करके दिए जैसे कोई फिल्म स्टार करता है, डेट लिख के, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जब हम उससे मिले, उससे मिलना इतनी हम चाहत थी, मतलब इतनी हम ट्राई कर रहे थे मिलने, तो फाइनली जब हमें दिखा वो, तो एकदम से थोड़ा झटका लगा कि हाँ यार, ये इंसान में वो ऑरा है जो कि हम आज तक दूर से इमेजिन करके और रिसर्च करके देखते आए हैं। तो उसने हमें बोला कि वेरी गुड प्रोडक्ट, स्पॉट ऑन। देन समबडी सेड ये एक्टर ये, तो मेरे को देखता है, बोलता है says I feel nostalgic of my youth when I see this, so very well done. So I tried to stop you. I sent you a legal notice. I tried to stop you. I consulted my lawyer in France. But you have Amod Khan's story, so I can't do anything. So then he said, give my salam to Amod. The way he said it, and I told uncle that he said this, he said, बदमाश है साला, उसको पता है इसको कैसे अपने आप को प्लेस करना है, कुछ कर नहीं सकता तो साथ हो लिया ताली हो जाती। आया कि 3 जुलाई को मेरी हियरिंग है, 3 जुलाई को, यू नो व्हाट आई मीन, आई थिंक वो बुला रहा था कि कोर्ट में आके मिल लेना मुझसे। 3 जुलाई को मेरी हियरिंग है और मैं 3 महीने में छूटने वाला है। तो उसने तो भाई यही बोला है हमें, और बोला कि मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज है, तो तुम आना मेरे से मिलने, वी नेगोशिएट। इस टाइप का आदमी है। उसके इर्द गिर्द कोई 50 आप जैसी उम्र के स्मार्ट लड़के थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे, और एक राजा की तरह वो अकेला रहता है एक सेल में, उसकी
छोटी सी सेल है, उसमें टीवी है, अखबार है, सारा दिन पढ़ता है, खाना खुद बनाता है, उसको किसी पे विश्वास नहीं है। तो ये शख्सियत से हम मिलके आए और मूवी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। प्रवाल रावल मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े तोपों के साथ काम किया है, पर ऐसा काम, ऐसी रिसर्च, ऐसा ब्रीजी वर्किंग एनवायरनमेंट मैंने किसी के हाथ नहीं देखा है। और जो कहानी इस पिक्चर की है अमोद कांत और चार्ल्स शोभराज के बीच, वो आज भी चल रही है। अमोद जी बोल रहे हैं बदमाश है, ये है, वो है, वो बोल रहा है आई लव यू अमोद। बहुत खूबसूरती से वो कैरेक्टर, वो है अमोद कांत। और इसमें और भी बहुत मैं है, जो कि कैरेक्टर रिचा ने प्ले किया है, एलेक्स ओनील ने प्ले किया है। एक लाइन है कि चार्ल्स कैन एस्केप यू बट यू कैन नॉट एस्केप चार्ल्स। वो आदमी इतना मैनिपुलेटिव है, वो ऐसे आपको चार्म करता है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये पिक्चर बनाते बनाते प्रवाल रावल तो बिल्कुल चार्ल्स शोभराज बन ही गया है। बहुत ही चार्मिंग फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड स्कोर है। आप पिक्चर को सर हिला हिला के उससे एंटरटेन होंगे। और बहुत ही खूबसूरत उसका पूरा स्क्रीन प्ले लिखा है। पहले दिखाते हैं क्या हुआ और फिर बताते हैं क्यों हुआ और फिर बताते हैं कैसे हुआ। ऐसे अनफोल्डिंग स्क्रीन प्लेज मेरे ख्याल से आप फिल्म इंस्टीट्यूट वाले समझ पाएंगे। तो ये है कहानी मैं और चार्ल्स की। मैं चाहूंगा कि आप सब जाएं और इसका लुत्फ उठाएं। Loris Postma, Antonio Salvia, El Mago। तुम हो कौन? सब। गौतम बुद्ध का अवतार है चार्ल्स। I look like the devil। लोग आपको क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। और जब वो मुझे देखता है, I feel like having sex with him. That meeting would change my life forever. चार्ल्स वो कहानियां लिखता है जो आगे चलकर बेच सके। Take a picture. It is good to be evil. He sounds very fascinating and mysterious. क्या है वो? है क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है। Let's catch the bastard. I'm guilty. Just joking. बोल्ड एंड ब्यूटी, मैं और चार्ल्स की बात करें तो मुझे बस उसको थोड़ा बताइए कि टाइटल को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं कौन है कोई नहीं जानता। नहीं, मैं आपको मैं बता दूँ मैं कौन है। मैं जो किरदार निभा रहे फिल्म में आदिल हुसैन, वो इन्हीं की लाइफ के आधार है। ये has been in the police service for 34 years, that's right, and instrumental in capturing Charles after the 86 situation. उसके अक्सर पे हमारी फिल्म बना है। और तो मैं मुझे लगता है
किरदार आदिल से? बोल्ड एंड की बात है, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा कोशिश कर रहे थे, कुछ नया आपको लगता है कि आपने एक रोल क्यों आपने इस रोल से बात कि मेरे लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी पहचान बनाई है अंदर से, नो डाउट। जी, ये बहुत ही पर्दों वाला ज़्यादा तो जब मुझे मिला किरदार करने के लिए तो मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत कुछ है बनाने के लिए। ये सब्जेक्ट है रिसर्च फिल्म का। साथ में क्या कितना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट भी है तो स्टूडेंट्स कितने एक्साइटेड थे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ऋचा चड्ढा की पुरानी फिल्में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये पूरा विश्वास है कि वो इसमें भी एक जो नया किरदार निभा रही हैं उसमें वो जान डाल देंगी। और रणदीप पूरा तो खैर अच्छा एक्टर है ही। CR न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नोएडा फिल्म सिटी में मारवा स्टूडियो। जी हमारे साथ मौजूद है संदीप मारवाड़ी। आइए आपको सर, आज जो है मैं और चार्ल्स की टीम आपके यहाँ आई हुई है प्रमोशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है। रणदीप हुड्डा की पॉपुलैरिटी और ऋचा चड्ढा की पॉपुलैरिटी देखकर मैं खुद ज़्यादा हैरान हूँ, जबकि दोनों बड़े मजे हुए कलाकार हैं और दोनों ने पहले बड़ी खूबसूरत फिल्में पहले देश को दे रखी हैं। मारवा स्टूडियो से हम लोग तकरीबन 125 फिल्मों के साथ जुड़ चुके हैं जहाँ तक प्रोडक्शन की बात आती है, और तकरीबन 200 से भी ज़्यादा फिल्में यहाँ से प्रमोट हो चुकी हैं जिन्हें हमें बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की है। मारवा स्टूडियो उत्तर भारत का सबसे पुराना फिल्म स्टूडियो है और शायद सबसे ज़्यादा काम हम लोगों ने यहाँ से किया है। फिल्मों के अलावा तो हम लोग तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम और तकरीबन 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण यहाँ से कर चुके हैं। रणदीप हुड्डा ने अभी प्रेस वार्ता में चार्ल्स इस फिल्म के बारे में बड़ा अच्छा बयान दिया है, क्योंकि एक वो काम हो गया जो बहुत मुश्किल था, जेल में जाकर चार्ल्स को मिल के आना और उसे इत्तला करना कि हम तुम्हारे नाम की ये फिल्म बना रहे हैं और रिलीज करने जा रहे हैं। तो आई थिंक पूरी फिल्म के अंदर एक नया एक्साइटमेंट आ गया। बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, पेपरों में चार्ल्स सोबराज का नाम बहुत चर्चित हो रहा था। शैतानियों से भरा हुआ है, बड़ा शातिर आदमी है, और अब उसी सारी चीज़ को एक दफ़ा बड़े पर्दे पर देखने को लोगों को मौका मिलेगा तो लोग, मुझे लगता है, बहुत हैरान और बेचैन दोनों हैं। देखना चाहते हैं कि वो ऐसा शख्स क्या था जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई थी और फिर भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था। और सबसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अमोद कांसी जो खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं और उन्होंने इस सारी फिल्म के अंदर एक बिल्कुल रियलिटी जिसे कहते हैं वो भरने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म रहेगी और मैं खुद बहुत बेचैन हूँ फिल्म देखने। जैसे कि हम स्टूडियो में मौजूद हैं, जल्दी जो है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। 17, 18, 19 को ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की फिर से एक बार योजना तैयार हो चुकी है। ये हमारा 8वां एडिशन है। पिछली बार तकरीबन 17,500 फुटफॉल हमें 3 दिन में मिली। यहाँ पर तांता लगा हुआ था। आप सभी लोगों ने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से कवर भी किया और इस बार भी हम लोगों ने तकरीबन 52 इवेंट तैयार किए हैं 3 दिन के अंदर। वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम, मास्टर क्लासेस और इसके साथ साथ फिर स्क्रीनिंग के अंदर इंडियन फिल्म्स, फॉरेन फिल्म्स, फिल्म्स ऑन डिसेबिलिटी, चिल्ड्रंस फिल्म सेक्शन, AFT का सेगमेंट, एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ का सेगमेंट, कॉम्पिटिशन सेगमेंट। तो एक बहुत बड़ा मेला तैयार हो चुका है। मैं तो कहूँगा महा उत्सव बन चुका है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, देश का ये दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल बन रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की यहाँ पर आने की आशा बनती चली जा रही है। रोज़ कोई ना कोई का कंफर्मेशन मेरे पास आ रही है। अभी आज ही मुकेश भट्ट जी की कंफर्मेशन, केतन मेहता की कंफर्मेशन, मनमोहन देसाई जी का रेट्रोस्पेक्टिव रखा जाएगा, उसके लिए केतन देसाई आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ हो जाएंगे जो खुद एक्चुअली यहाँ पर आकर नए फिल्म मेकर्स और फिल्म बफ्स और फिल्म लवर्स के साथ बात करेंगे। जैसे कि फिल्म सिटी के अंदर नोएडा मारवा स्टूडियो जो है एक अपने आप में जो है बहुत चरम पर है, बहुत जो है शिखर पर ऐसे है
तो उसमें नए स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, देश को सबसे ज़्यादा अगर सेलिब्रिटी किसी ने दिया है तो वो एशियन कैटेगरी फिल्मी टेलीविजन ने दी है। आज भी हम लोग बात कर रहे थे, जब ऋचा चड्ढा ने अपनी फिल्म फुकरे की बात की तो मैंने उसे बताया कि फुकरे का डायरेक्टर भी मेरा ही स्टूडेंट रहा है। और जब रणदीप हुडा ने बताया कि मेरी चर्चित फिल्म वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, तो उसे मुझे बताना पड़ा कि रजत अरोड़ा वो भी मेरा ही स्टूडेंट यहीं से ही निकला हुआ है। ऐसे बहुत सारे नाम जुड़ चुके हैं आज। फगली में मोहित मारवा भी उसने हाल ही में अनमोल मलिक की बेटी के साथ लम्हे बहुत खूबसूरत गाना किया है जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। तो ऐसे कई नाम हैं मेरे पास जिनके ऊपर मैं गर्व कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अनिल से बात करने के लिए। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ मारवा स्टूडियो से संदीप मारवा जी, फिल्म सिटी नोएडा से। मैं आपका खान संदीप। This film lies in the authenticity, in the culture of this character. I have watched Dewal appealed to me as a person who is authentic. I have known him making good films. I have known him personally also. सर, सबसे पहले लाइव इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे नजर आता है, आप कैसे ये सब कैसे कर लेते हैं? मतलब मारवा स्टूडियो उत्तर भारत का सबसे पुराना स्टूडियो है और हम लोग यहाँ से तकरीबन 150 से भी ज़्यादा फीचर फिल्मों के साथ जुड़ चुके हैं, जिनको हम लोगों ने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। और मेरे ख्याल से 200-250 फिल्में ऐसी हैं जो मारवा स्टूडियो के प्रांगण से रिलीज हुई हैं। आज उसी श्रृंखला में मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ पर मैं और चार्ल्स की पूरी टीम मौजूद है और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है और इसकी स्टोरी जो है वो पूरी एक रियल स्टोरी के साथ जुड़ी हुई है। पूरी स्टार कास्ट यहाँ मौजूद है। ऋचा चड्ढा और रणदीप हुडा के दोनों के आने से बड़ी ज़बरदस्त रौनक लगी हुई है। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं और इनकी अगर दोनों की पुरानी फिल्में भी देखी जाएं तो ज़बरदस्त काम इन लोगों ने किया है। अभी ऋचा ने अपनी फिल्म फुकरे का जिक्र किया, मुझे खुशी है इस बात की कि फुकरे का डायरेक्टर भी मारवा स्टूडियो के प्रांगण से तैयार होकर मुंबई तक पहुंचा था और रणदीप हुडा ने नाम लिया कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और ये भी कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उसका राइटर रजत अरोड़ा भी मारवा स्टूडियो का ही स्टूडेंट रहा है। बिल्कुल, बड़े बड़े जितने भी बॉलीवुड में चेहरे या फिर मीडिया में आप देखेंगे, न्यूज चैनल से भी देख ले, सारे यहीं से ही मतलब आपके क्या कहेंगे, आपके अंडर से सब होते हुए गए हैं। सर, आप आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना कुछ बताएंगे? हमने सुना है कि कुछ आप स्पेशल प्रोजेक्ट्स जी 17, 18, 19 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल फिर से एक बार आ रहा है। ये उसका 8वां एडिशन है और 52 से भी ज्यादा हम लोगों ने इवेंट्स डिजाइन किए हैं। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी रौनक लगेगी यहाँ पर। पिछले साल भी हमारे यहाँ पर तकरीबन 17-18 हजार फुटफॉल 3 दिन में हुई। वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम, मास्टर क्लासेस, स्क्रीनिंग ऑफ फॉरेन फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स, चिल्ड्रंस फिल्म्स, रेट्रोस्पेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले ही केतन देसाई जी की कंफर्मेशन आ गई है, केतन मेहता की कंफर्मेशन आ गई है, मुकेश भट्ट जी की कंफर्मेशन आ गई है। ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से नोएडा में रौनक लगेगी। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बात करना मैम, मूवी के बारे में आप थोड़ा सा मैं और चार्ल्स फिल्म में 30 अक्टूबर को आ रही है। सन 86 की जेल ब्रेक पे आधारित है। रणदीप, आदिल हुसैन और मैं हैं फिल्म में मुख्य किरदार, और भी बहुत सारे एक्टर हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। मैम, डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने अलग-अलग मूवीज में, इस मूवी में आपका कौन सा कैरेक्टर क्या है? इस मूवी में मेरे किरदार का नाम है मीरा शर्मा। लॉ स्टूडेंट का रोल है और वो किसी तरह से क्रिमिनल के प्यार में पड़ जाती है और पुलिस की मदद करती है एक हद तक, और एक हद तक क्रिमिनल की मदद करती है, उसे जेल से निकालती है।